टाइटो बच्चो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद छी तुम ٲسِو ठीक। यह क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस तो युस बुक नंबर सह बुक नंबर 1 यथ नाव अवर पास्ट्स अमिच आज 5th लेसन पढ़ यथ वन यथ नाव व्हेन पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर। टाइटो बच्चो तुम थो पनी किताब कुन नजर तुम खुलो यह पनी किताब तो वो पनी किताब कुन तो बह पर्नामो तुम पॉलिसीज एंड द पीपल। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुकड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट they had on different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribal soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments. Nawabs lose their power since the mid-18th century. Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by states. Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. For example, Rani Lakshmi of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as their heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Sahib, the adopted son, Pashwa Baji Ray II pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military power, turned down these pleas. Oudh was one of the latest lost territories to be annexed. In 1800, a subsidiary alliance was imposed on Oudh, and in 1856 it was taken over. Governor General Dulles declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. In 1849, Governor General Dulles announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. टाइटो बच्चो तुम बुझू यथ लेसनी माने मे वोनमो तुह ब्रहमी चूरमी लेसनी मज कि रिबेलियन गो बगावत गई या बागी गई लोग कार गई 1857 मज तिकाज यह कंपनी हुंद जुल्म इमो कड़िक नई नई रूल सैनिस इंडियास मज तो लोग आय अम नश तंग तो लास्ट पे गख रिवोल्ट यथ वन बगावत वनोस सह 1857 मज तो और तम पत एंड आफ्टर तो क्या गसा पॉलिसीज एंड द पीपल. In the previous chapter you looked at the policies of the East Indian Company. टाइटो बच्चों में पढ़ना में तो 3 तो 4 चैप्टरस मज यह कि युस ईस्ट इंडियन पॉलिसी किस इंडियन लूकन पे तो अम सतन आय तमाम लोग चाहे सह किंग ओसा क्वीनस या पेजेंट्स या लैंडलॉर्ड्स सोल्जर्स तमाम गई अम सतन इफेक्ट. और you have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments. यह तुह पता टाइटो बच्चो इस कंपनी यम पॉलिसीज बन तो अम गई इमन लोग खिलाफ इमन पॉलिसीन तो इमन प्रोग्रामन लास्ट पे लोगों कर रिजेक्ट इम पॉलिसी तो सेंटिमेंटन खिलाफ गई लोग तो
Nawabs lose their power. तो यम बादशाह ٲسۍ तम वक्त अति नवाब ٲسۍ ये तिमो तिहुंद सह पावर ٲस सह कोरुक तिमो लूज कि तिमो त्रोक आस अथॉरिटी हिसाब अथॉरिटी अत किमो कंपनी वालो since the mid 18th century येल हसा mid 18th century ٲस तो नवाबास या राजास ٲस तिमन हसा हेतुक आस पावर अत तिमो हसा त्रोक पावर they had gradually lost their authority and honor यूस आस्ते आस्ते क्या गई तिमन दलील तिमन गई प्रॉब्लम तिकाज कंपनी हज पॉलिसीज तो प्रोग्राम्स ती कि तिमन पे नत पावर या जोर त्रावन तो नत हेता कंपनी हिंद पॉलिसी तो प्रोग्राम्स नत पे तम सह पन पावर त्रावन Residents had been stationed in many quarters. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. Yim tim waqt baadshah ٲسۍ तिमन आय अकिस मखसूद जाय नीन यम तिमन आर्मड फोर्सेस ओस सह गो डिसबैंड युस तिमन पनन फौज ओस सह कोरुक डिसबैंड तो युस तिमन रेवेन्यूज ओस या तिहंज टेरिटरीज ओस सह तिमन अथिन तो सह कोर कंपनी पनिस साइडस कोन यानी पनिस कंट्रोलस मज many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests many यानी वारिया ruling families तम वक्त यम दपा गसी कि कत बात गसी कंपनी सतन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सतन तिकाज यम इंटरेस्ट तम गस कंपनी मानि तथ मज एग्जांपल युस रानी लक्ष्मी सो यसा कि तिहुंद वर्निचो ओस यानी एडॉप्टेड सन तम गस तम मानिन कंपनी गस मानिन तिमस यसा वरासतुक हकदार इम बादशाही हुन तम पतन ये तमस रानी लक्ष्मी हुन खानदार मरहे मगर यह न कंपनी तम वक्त माना कहीं इथे कन ब्या नाना साहेब द एडॉप्टेड सन नाना साहिब इस एडॉप्टेड सन ओस कोन पशवा बाजी रेस सेकंड pleaded that he be given his father's pension when the later died दपा इथे कन ओस ब्याक युस नाना साहिब ओस सो ओस दपा मे गोस मोल सुन पेंशन तारुन येल म्यून मोल मर The company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. The company was East Indian Company was so confident तिकाज तिमन was superiority तिमन was military power तिमो कर तमाम इरादम नवाबन हिंद तिम कर कम ऊद युस लास्ट टेरिटरीज युस हसा ब्रिटिश वाले पनिस लास्ट टेरिटरीज लास्ट पे करक ऊद युस सह कर पनिस कब्जस मज युस तमिस टेरिटरीज सह पानस कुन पत गसा 1801 मज सब्सिडरी अलाउंस इम्पोज कर ऊदस मज मगर ये रोजान तीस टाइम्स कहीं अम पे 1856 मज बे वापस नीन युस गवर्नर जनरल तम वक्त डिलोस सह डिक्लेयर कर टेरिटरी कुस declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. Lord Delos तम वक्त 1856 मज सह डिक्लेयर कर ऊदस मज एडमिनिस्ट्रेशन सह गो मिसगोर और तत हसा ब्रिटिश रूल सटा जरूरत तिकाज तत एडमिनिस्ट्रेशन नज़म जब्त खतर सटा जरूरी अम पे द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनासिटी टू एन एंड अम पे कंपनी शुरुआत करा कि इस कह करो युस मुगल डायनासिटी यह कह करो ये एंड द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स इमो कोरो गोनिक स्टेप यह कि युस नाव उस मुगल किंगन हुन किमन तम वक्त पोंसन पे आसा यह से कोरुक इमो रिमूव यानी खत्म कोरुक तो यम नई पोंस बना तिमन पे लिखुक ओन नाव कहीं तिमन पे लिखुक ओन फोटो न त्रोग लिखुक बनोक ओन फोटो तो न लिखुक ओन नाव इन 1851 मज यानी 1851 मज गवर्नर जनरल डिलोस कर अनाउंस क्या कर दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर दपा ये बहादुर शाह जफर हसा मर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट दपा युस हसा मुगल फैमिली बहादुर शाह जफर फैमिली यह कर शिफ्ट कत रेड फोर्ट पे एंड इमन नो जॉय दिल्ली मज दिन
1856 मज गसान गवर्नर जनरल आसान लॉर्ड कैनिंग सह डिसाइड करान दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग दपान सह लॉर्ड कैनिंग सह करान 1856 मज यह ऐलान कि यह हसा बहादुर शाह जफर यह मुगल किंगडम अमुक लास्ट बादशाह तो अम पे हसा करुन रुकन कह किंग अत मज तो और यह हसा रोज इथे कन यथ कन प्रिंसेस रोजान अम पतन यह बाकी वसलम।